Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And today, students, I am covering the next topic of your chapter climate. The topic is the season. In the previous video, I explained you about the onset of the monsoon and the withdrawal of monsoon. Under this topic, we have to be learned that how the monsoon arrived in our country and how it withdraws from the country. किस तरह से आता है, what are the feature of that withdrawal, arrival of monsoon, and what are the feature of withdrawing of monsoon. Okay, now the seasons. Here in our country, according to climate, we are facing different seasons, and if we are observing, अगर हम normal observe भी करें तो normally we are having cold weather season, hot weather season, and maximum time we are saying that there is rainy season. Okay, but not rainy season, we have not three seasons exactly we have the four type of season in our country according to climatic situation facing four type of seasons. Okay, let's now I am telling you which four type of seasons we are facing. Here the seasons is cold weather season, hot weather season, advancing monsoon, and retreating monsoon. These two, you all are very much familiar with these two seasons. Advancing monsoon means when the monsoon winds are arrived in country, जो मैंने आपको कल बताया, one set of monsoon. And retreating monsoon is the time period when the monsoon is going back from the country, retreating, वापस जब जाता है, that period. Okay, so let's read it, the para first seasons, then I will start the first season. The monsoon type of climate is characterized by the distinct seasonal pattern. यस स्टूडेंट्स, तो मानसून टाइप में हमारे पास डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न आते हैं, डिफरेंट सीजनल पैटर्न्स को हम फॉलो करते हैं. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन्स टू अदर, और जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं वन टू अनदर. दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड ये चेंजेस हम कहाँ नोटिस करते हैं? इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में, आउटर में नहीं, इंटीरियर में. The coastal area do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. जो हमारे coastal areas हैं वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता बच्चे, बिकॉज मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि पानी जो है, वाटर जो है, वो जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म नहीं होता. दैट्स वाई नियर द कोस्टल एरिया टेम्परेचर इज़ ऑलवेज equitable type of climate is facing in near the coastal area. Okay, this is the reason that according to variation, there is very less variation in temperature in the coastal area, but there is the variation in rainfall pattern. How many seasons are experienced in your place? आप अपने प्लेस पर कितने सीजन्स करते हो? अगर मैंने अभी आपसे नॉर्मली बात की दैट वी आर फेसिंग हॉट वेदर सीजन एंड कोल्ड वेदर सीजन, नॉर्मली वी आर फेसिंग, एंड थर्ड वन इज रेनी सीजन. Okay, the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and retreating monsoon are some regional variation. ये some regional variations हैं. These are the four seasons that are experienced by our country or by the people of our country. Okay, so let's start the very first season, that is cold weather season. As we all know that this is the winter season. Cold weather season. Okay, first of all we have to be learned that in the first para what is the time period when it is arrived, when it is goes back. Then we are learn about the major feature of the winter season. तब हम इसके major features को discuss करेंगे. Okay, let's start it. The cold weather season begins from the mid-November in North India and stays till February. When it was started? In the month of November. As we are facing that October is going on and still our fans are having we are having fans, using fans still now, and feeling little bit hot, but climate is start changing. और धीरे धीरे जो क्लाइमेट है, जो वेदर कंडीशन है, वो हमारी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं. अब जो मौसम है, वेदर है, जो वो पहले से कंपैरेटिवली चेंज हो गया है और उतनी हीट नहीं फील करते हम जितनी की पहले करते थे इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. ओके, तो
टिल द मिड ऑफ नवंबर वी आर फेसिंग व्हाट, विंटर आ जाएंगी नवंबर में इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी, और कब तक रहती है, फरवरी तक। इन द मार्च वी हैव अ वेरी प्लीजेंट वेदर देयर, वी डोंट हैव सो मच ऑफ कोल्ड एंड डोंट हैव मच हॉट, हीटनेस भी कम होती है और कूल टेम्परेचर भी नहीं होता, ठंड भी नहीं होती है, ठीक है। तो फरवरी तक ठंड रहती है, ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। विच आर द कोल्डेस्ट, दिसंबर एंड जनवरी। The temperature decreases from south to the north. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 to 25 degree Celsius. टेम्परेचर कहाँ डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एज वी आर गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। बच्चे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हम साउथ के टेम्परेचर की बात करें इन आर साउदर्न एरिया, ठीक है, साउथ इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 30 to 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में एवरेज टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द ईयर, ओके। नॉर्मली सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, विंटर्स में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तक चला जाता है, और सम इन विंटर्स, ये लीस्ट टेम्परेचर बता रही हूँ मैं आपको, और समर्स में हाई टेम्परेचर जो जाता है मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन इट, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री के 32 33 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहता है हमारे पास टेम्परेचर। सो यहाँ पर हमें क्या चीज़ बता रहा है कि साउदर्न एरिया वी आर नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ कोल्ड वेदर सीजन, यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती हैं इन एनी सीजन, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कोस्टल रीजन्स। चलिए, तो वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए साउथ इंडिया में टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, बट इन नॉर्दर्न प्लेन्स, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वी आर फेसिंग 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू दिस। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज लिटिल बिट वार्म होते हैं बट नाइट्स आर टू मच कोल्ड, ओके। नाउ frost is common in the northern and the higher slopes of Himalayas experience snowfall. frost common होती है, frost धुंध जो हम कहते हैं, fog जो हम कहते हैं। चलिए, now during this season the north east trade winds prevail over the country. अब इस सीजन में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सी साइड से आई, नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी दिस, दीज विंड्स आर प्रिवेल्स इन द कंट्री, और ये कंट्री में ये विंड्स चल रही हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द विंटर्स में क्या होता है, अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर में ये लैंड पोर्शन है और ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, तो यहाँ पर हवा डेंस हो जाती है और हेयर वी हैव हाई प्रेशर बेल्ट। बट एज कंपेयर टू द विंटर्स, सी में क्या आ रहा है, कोल्ड वेदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है। वाई लो प्रेशर बेल्ट, बिकॉज जो सी है, जो वाटर है, दैट इज़ मच वार्मर एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरेटिवली जो हमारा वाटर है वो थोड़ा वार्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रीज है वो कौन सी चल रही है, हियर वी आर फेसिंग द लैंड टू सी ब्रीज। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन सी टू लैंड ब्रीज इज गोइंग ऑन, व्हेन सी टू लैंड ब्रीज इज गोइंग ऑन इन द, हमने मानसून विंड्स में पढ़ा था, तब क्या होता है, तब यहाँ पर वैपोरेशन होती है और ये कंडेंस होती हैं और फुल ऑफ वाटर वेपर्स होती हैं और ये यहाँ पर रेनफॉल लेके आती हैं। यही रीज़न था ना इंडिया में मानसून आने का, ठीक है। बट जब लैंड टू सी ब्रीज चल रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई वैपोरेशन नहीं हो रही है, कोई वाटर वेपर्स को, एयर में वाटर वेपर्स नहीं आ रहे हैं, सिंपल विंड चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। सो दिस इज़ ड्राई विंड्स।
ये ड्राई विंड्स होती हैं, ड्राई सीजन होता है, ड्राइनेस आती है एयर में। अगर आप नॉर्मली नोट करोगे ना तो विंटर सीजन में क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है एंड देयर इज यू हैव टू बी नीड समथिंग टू बी हैंस। कोल्ड वेदर सीजन में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चल रही है और ये ड्राई विंड्स है, ठीक है। तो हमें देखिए ड्यूरिंग विंटर हमारे स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है एंड वी हैव टू बी नीड समथिंग टू मेक आवर स्किन ऑयली, और वी कैन से कि उसमें मॉइस्चर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोई क्रीम या कुछ कोल्ड क्रीम्स वगैरह अप्लाई करने पड़ती हैं। दैट्स वाई बिकॉज विंड इज़ ड्राई एंड दैट मेक आवर स्किन ऑल्सो ड्राई, ठीक है। तो ये कौन सा सीज़न है, ये ड्राई सीज़न है। लेट्स रीड इट नाउ। Here it is, the northern east, sorry, we are prevail over the country and the most of the part it is dry season, ठीक है। तो पूरे कंट्री में क्या है, ड्राई सीजन है। Why? Because land to sea breeze is blowing. Some amount of rainfall occur in the Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land. ये बड़ी important line है बच्चे, just read it again. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu. पूरे विंटर सीजन में इस पोर्शन में कहीं रेनफॉल नहीं हो रही है, बट वी आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन हेयर देयर इन तमिलनाडु। वाई? तमिलनाडु में विंड्स ड्यूरिंग द विंटर्स रेनफॉल होने के दो कारण हैं। एक तो बिकॉज यहाँ पर जो है वो ब्रीज जो है वो सी टू लैंड चल रही है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो वाटर है वो एज़ कम्पेयर टू लैंड जो है वो कूल है और वाटर लैंड जो है वो हॉट है बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया, बिकॉज ऑफ इक्विटेबल क्लाइमेट, ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो विंड्स यहाँ से चल रही हैं, लैंड टू सी ब्रीज चल रही है, तो ऊपर से जो विंड्स आ रही हैं वो धीरे धीरे आती कुछ ना कुछ मॉइस्चर, वाटर वेपर्स हमारी एयर में अवेलेबल होते हैं, लिटिल बिट हों या ज़्यादा हों, बट होते हैं। तो वो थोड़ा करके मॉइस्चर लेती हैं और यहाँ तक आते वो फुल ऑफ वाटर वेपर्स हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स हैं। देन दीज विंड्स, ये विंड्स यहाँ पर इससे टकराती हैं और यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश लेकर आती हैं, ठीक है। दीज टू रीजन्स आर हेयर। यहाँ पर ये दो रीजन्स हैं हमारे पास तमिलनाडु में इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर या अक्टूबर में बारिश होने के, ठीक है। चलिए, सो तमिलनाडु कॉस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। तो तमिलनाडु में रेनफॉल अक्कर होती है इन द विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। अब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। विद लाइट विंड्स मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, जो मूव कर रही हैं दिस एरिया से, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ। और किससे प्रभावित है, रिलीफ से। वाई? बिकॉज रिलीफ जो है वो कूल है, ठंडा है। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, गंगा वैली से ब्लो कर रही हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू देयर, हेयर इट इज़ गंगा वैली। एंड विंड्स जो है वो नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन जो है, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्रिवेल कर रही हैं, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ओके। एंड द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, स्काई इज totally clear, there is no cloud in the sky, low temperature low है, low humidity and feeble variable winds, और variable winds हैं, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो ये important feature है हमारे cold weather season का। weather is normally marked by clear sky, sky clear है, low temperature है and low humidity है, temperature is low and humidity level is also low, dryness is here, okay। now come on the next. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances. अब यहाँ पर एक important चीज़ आती है कोल्ड वेदर सीजन में, वो आती है cyclonic disturbances. Students, if you remember in the starting of the chapter or when I explaining you the factor affecting the climate of our country, I told you about western